إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ہمارے لیے یہ بہت ہی غم کا دن ہے آج، کہ آج انسانیت کی کتاب قرآن انسانوں کی کتاب ہے، مسلمانوں کی صرف نہیں۔ اس کتاب کے اوپر اتنی جرأت کیا وسیم نے کہ اس میں سے کچھ آیتیں 26 وغیرہ نکالنے کی بات کی ہے۔ آج تک ایسا کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ بات کہے کہ قرآن جو کہ انسانیت کی کتاب، اور اسے کسی انسان نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا ہے، اور قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی محافظت کرنے والے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر شک کرے وہ بے شک فاسقوں میں سے ہے۔ لہذا بات بالکل واضح ہو گئی ہے، اور میں اسی لیے انسانیت سے بات کر رہا ہوں۔ میں مسلمانوں کے کسی بھی انسانیت کا دماغ جو رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس منحوس کے لیے آواز بلند کرے، اور آئندہ آواز بلند کر کے ان کی آواز کو بند کر دے ہمیشہ کے لیے۔ اور ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ ایسے لوگ اگر معاشرے میں پیدا ہوں فوراً ان کو اریسٹ کیا جائے اور جیل کی سلاخوں میں ڈالا جائے بغیر ضمانت کے۔ ان کی ضمانت بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ آج اگر اتنی بڑی کتاب پہ انگلی اٹھا رہے ہیں تو کل دوسروں پر بھی بات آ سکتی ہے۔ ہمارا ملک سیکولر ملک ہے، ہم یہاں کسی بھی مذہب کی بے عزتی پسند نہیں کرتے۔ عالم اسلام اور عالم انسانیت کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں میرے بھائی، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ لہذا ہم اس وسیم کی اس حرکت کو پرزور طریقے سے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور پورے عالم انسانیت کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوں اور اس کتاب کی اور اس ہماگیر کتاب کی محافظت کریں، اور آگے اس پہ کسی کی انگلی اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔ یہ کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب۔ میں ایکچولی ابھی جو یہ حملہ کیا ہے نا، خاص کر جو وسیم رضوی نہیں کہتا ہوں اس کو، وسیم رضیل کہتا ہوں، کیونکہ یہ جو انسان ہے، یہ انسان اسلام کے لیے یا مسلمانوں کے لیے بات کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن نہیں ڈالا ہے۔ وہ ایکچولی یہ جو ہے یہ زیونسٹ ہیں، یہ لوگ یہ دجال کے ماننے والے ہیں۔ یہ لوگ یہ ایکچولی ہم لوگوں کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی یہ کسان کا یہ الیکشن، کسانوں کا وہاں پہ آندولن چل رہا ہے، اور بنگال میں جو ہے الیکشن چل رہا ہے، وہاں پہ شیعہ سنی کا جھگڑا کرا کے اپنا وہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دوسری بات یہ بھی میں سمجھا دوں لوگوں کو، یہ قرآن کی 26 آیتوں کی بات چھوڑو، قرآن کے یہ ایک نقطہ، ایک زیر، ایک زبر بھی نہیں نکال سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے۔ یہ اس کے اوپر جو بولنے والا ہے وہ منافقین ہے، منافقین سے بدتر کافر ہے۔ اور اس کو جو ہے یہ وسیم رضیل کو ایران اور عراق سے جو ہمارے جو سپریمو ہیں آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنائی، 2 سال پہلے اس کو فتویٰ دے چکے ہیں۔ یہ خارج ہو چکا ہے، نہ یہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، یہ حیوان ہے۔ سب سے پہلی بات ہے یہ انسان نہیں ہے۔ اگر یہ انسان ہوتا تو آج ہمارے وطن کے لیے جو صحیح چیز ہونا چاہیے تھا، لوگوں کو ملانا کی بات کرنا چاہیے تھا، ایکتا کی بات کرنا چاہیے تھا، جو کسان کے ایکتا کی، مزدوروں کی ایکتا کی بات کرنا چاہیے تھا۔ آج ہمارے ہندوستان میں بے روزگاری کی بات کرنا چاہیے تھا۔ آج ہمارے ہندوستان میں مہیلاؤں کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے، اتیاچار ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہیے تھا۔ اور جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کی وجہ سے ساری مہنگائی سارے ہندوستان میں بڑھ چکی ہے، مزدور تو مر چکے ہیں، جو غریب لوگ مر چکے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات، کورونا کے وقت میں جو مزدور لوگ لاکھوں کے حساب سے بامبے سے، دلی سے، کلکتہ سے، بہار، یو پی جانے وقت میں
उन लोगों को कोई सहूलत नहीं दिए थे। ये ऐसी हुकूमत है, ये ऐसी गवर्नमेंट है, पैदल चलते हुए उनके पैरों में छाले आ चुके थे। उस वक्त ये लोग उनके बारे में हमदर्दी नहीं किए। अब कौन सी हमदर्दी करने के लिए आए हैं शियाओं के बारे में? शिया है, सुन्नी है। शिया वो है मुकम्मल दीन लेकर आया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद और आले मोहम्मद का दीन लेके आया है। ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमिनू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। ये आयत पढ़ने की मुझे इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये परवरदिगार ने बता दिया, मैं और मेरे मलाइके उस नबी के हाल पे दरूद भेजते हैं। तो अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो दरूद भेजने की? और ईमान वालों को बोल रहा है आमीन, आमनो बोल रहा है, यानी कि ईमान वाले, ईमान वालों तुम भी दरूद पढ़ो। इसका मतलब ये है कि सारे मुसलमान जो है उस मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर दरूद भेजते हैं। उस मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में आज ये कुरान जुड़ा है। आज कुरान हम लोगों के पास आए। आज इस कुरान की वजह से सारी दुनिया में अमन और अमान के पैगाम पहुंच रहा है। आज इस अमन और अमान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं ये ज़ियोनिस्ट हैं। याद कर लीजिए, इनको एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, इल्यूमिनेटी बोलते हैं, ज़ियोनिस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये सारी दुनिया की माशियत को ख़त्म करना चाहते हैं और डी पॉपुलेशन करके सारी दुनिया में अपनी हुकूमत को ये करना चाहते हैं, समझे ना। और दूसरी बात यह है उस रसूल के नवाज से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाज से क्या ज़हूर होने का वक्त आया हुआ है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का। तो उनका इस्तेक़बाल सारे मुसलमान मिल के करना है, शिया नहीं है, क्योंकि जिसका कलमा पढ़ते हैं उसका नवासे को परवरदिगार ज़हूर कर रहा है। इसलिए मैंने आप सबसे, सारी दुनिया के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि ये जो है शिया सुन्नी को लड़ा के अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अल्लाह एक है, पंजतन 5 है, समझे ना। इमाम 12 है, मासूम 14 है। ये 14 के राह पे हमें चल के अपन चले तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। इस रजील के ऊपर, इस वसीम रजील के ऊपर लानत है, बैकाट करो और सब मिल के इसके बारे में हम लोग मजम्मत करना चाहिए और जुलूस निकालना चाहिए। शुक्रिया आप सबका। और सर आपका नाम? मेरा नाम असद अब्बास है। मैं अंजुमन हुसैनिया जाफरी मस्जिद का ट्रेजरर हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये कोरोना जो है इस स्टेटमेंट के बाद फीका पड़ चुका है। इसने ये कोरोना के बदले जो इसने स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा वायरस है जो मुसलमान और मुसलमानों में तफरीक़ा पहले से ही काफ़ी है, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद और भी बढ़ सकता है। लेकिन इसे हमें एक साथ मिलजुल के इसके साथ लड़ना चाहिए हमें, और यूनाइट होने का ये वक्त है ताकि हमें दूसरे कौमों से बचने का ये मौका मिला है हमें। आज हम बहुत सारे फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं, लेकिन आज ये इत्तेहाद का हमें प्रूफ करने का मौका मिला है। मैं ये सबसे अपील करता हूँ, यहाँ पे देवबंदी, सुन्नी, शिया, ये यहाँ अभी ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है। यहाँ पे हमें एक मुसलमान होकर, एकजुट होकर इस मुकाबला करना चाहिए। ये वसीम रिजवी कोरोना से भी बढ़कर इसने अपना वायरस छोड़ा है। मैं सबसे एक आजीज़ाना अपील करता हूँ कि इसको एक मुसलमान का शक्ल नहीं दे, इसको ये काफिर से ही बदतर है। ये अब जैसे हमारे भाई ने बताया कि ये वसीम रजील है, रिजवी नहीं है, ये रजील है। और जो भी कहना चाहिए, गाली अगर मना है, अगर गाली देने का अगर मुझे हुक्म होता तो मैं गाली भी देता उसके बगैर, मगर मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ पे मुझे मना है, शरीयत मुझे इजाज़त नहीं देती इस चीज़ की कि मैं इसको गाली दूँ। मैं इसी के साथ सबसे आजीज़ाना अपील करता हूँ कि इसको 2 साल पहले ही हमारी कम्युनिटी से, हमारी उम्मत से बेदखल कर चुके हैं, और इसका बदला हमारी कौम से इस तरह से लिया जा रहा है इस ऐसे स्टेटमेंट्स की वजह से। तो एक वसीम रिजवी के लिए कोई दूसरी कौम का कोई बंदा जिम्मेदार नहीं है। जो भी इसे लेना, हम मिलजुल के इसका बदला लेंगे। इसने हमें सिर्फ कुरान के लिए नहीं, हर एक चीज़ हमारे मुसलमान को झुटलाने की कोशिश की है। इसमें हर एक बच्चा शामिल है, क्योंकि ये बच्चे आज हमारे कल का फ्यूचर हैं। ये कुरान पढ़ के ये हमें इस्लाम जानते हैं, कोई भी बताने वाला नहीं है। कुरान की रोशनी से ही हमें इस्लाम बताया जाता है कि इस्लाम क्या है। तो मैं ये सबसे अपील करता हूँ हमारे मुसलमान भाइयों से कि इसे पर्सनल लेवल पे ना लें, किसी फ़िरक़े के तौर पे ना लें। ये जो है वसीम रिजवी का शियों पे अटैक है ये,
कि इसका नुकसान जो होता है शियों को होता है, क्योंकि इसको 2 साल पहले हमने बेदखल कर दिया। इसी तरह की ऊट पटांग हरकतें करके ये हमें नुकसान करना चाह रहा है। मेरे भाइयों, मैं अपील कर रहा हूँ कि इस चीज़ पे आप गौर करें। मैं दूसरे उलमाओं से भी उम्मीद करता हूँ कि ये अपने अपने मसाजिदों में इस चीज़ का डिस्कस करें और सोचने पे ज़रा रोशनी डालें। अगर सर वसीम रज़वी जो है किधर से हैं वो? ये बेसिकली लखनऊ से ही है। इसका 2 साल पहले ही बाइकआउट हो चुका है। ये मैं आपको खुले तौर पर बता देना चाहता हूँ। इसका फतवा भी है, आप चाहें तो मंगा कर भी मैं आपको दे सकता हूँ। यूट्यूब में भी अवेलेबल है इसका। के न्यूज़ को बात करने के लिए धन्यवाद सर। मैं वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ बात करना चाहता हूँ। जो उसने भी स्टेटमेंट दिया है उसके हम मजम्मत करते हैं। अंजुमन हुसैनिया और मस्जिद जाफरी और मुहर्रम कमेटी की जानिब मैसूर से तमाम शियाने मैसूर की जानिब से जो है इसकी मजम्मत करते हैं। जो वसीम रिजवी ने कहा है वो सरासर गलत है, इसलिए कि हमारे उलमा ने हमें सिखाया है कि कुरान के किसी एक हर्फ का इनकार भी जो है इस्लाम से खारिज होना है। इसने 26 आयतों का इनकार किया है, इसको जो है सज़ाए मौत देनी चाहिए और उसने अपने मुर्तद होने का ऐलान किया है। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि शियाने मैसूर की जानिब से और अंजुमन हुसैन और मस्जिद जाफरी की जानिब से पूरे तमाम शियाने हैदर कर्रार जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं तमाम की जानिब से हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इसको सज़ाए मौत दी जाए। और ये जो है मुर्तद हो चुका है, इसलिए कि इसने खुल्लम खुल्ला कुरान का सरीहन इनकार किया है 26 आयतों का, बल्कि अगर किसी एक लफ्ज़ का भी इनकार किया जाए तो वो खारिज इस्लाम है। और मैं अपने तमाम लोगों से जो नाज़रीन किराम है उनसे कहना चाहते ये शिया ही नहीं बल्कि मुसलमान ही नहीं है, इसका बायकाट किया जाए। और तमाम लोगों से अपील भी करता हूँ कि मिलजुल कर रहे हैं, इसलिए कि हमें इस वक्त जो है इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है, चूँकि ये दुनिया जो है हमारे मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान हकीम की सूरह हुज्र की 9वीं आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने इसको नाजिल किया, यानी हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अब ऐसे कुरान और ऐसी किताब कि जो अल्लाह की तरफ से इंसानियत की हिदायत के लिए नाजिल हुई है और हिफाजत उसके ज़िम्मे है, तो किसी की उसमें रखना डालने से कुरान के अंदर कोई रखना नहीं पैदा होगा। बिल्कुल, इसलिए कि हिफाजत करने वाला ख़ुद अल्लाह है अपनी किताब का। ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है, ये किताब किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है। हाँ, मुरतब किया है इंसान ने, लेकिन असल में ये किताब इलाही है जो नाजिल हुई है इंसानियत को हिदायत देने के लिए। लिहाजा हमारे तमाम इंसानों के लिए ज़रूरी है कि इसका प्रोटेक्शन करें। ये मुसलमानों की किताब नहीं, इंसानियत की किताब है। लिहाजा तमाम इंसानों के लिए इसकी हिफाजत ज़रूरी है और उसके ऊपर अल्लाह की हिफाजत मौजूद है। लिहाजा हम ये वसीम ने जो बात कही है, मैं रिजवी नहीं कहूँगा, वसीम ने जो ये बात कही है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, इसलिए कि वो कुरान के बारे में जानते ही क्या है, कुछ भी इल्म नहीं है। अगर उसको इल्म होता तो ये बात ही नहीं कह सकता था कि कुरान में 26 आयतों को हज़्फ़ किया जाए। एक ज़ेर ज़बर भी उसका हज़्फ़ नहीं किया जा सकता है, हत्ता हमारे रसूल भी हज़्फ़ नहीं कर सकते। ये इतनी अजीम किताब। तो फिर लिहाजा अब इनको कहना, सुप्रीम कोर्ट में जाना, ये कोई भी बिल्कुल सही बात नहीं है, अक्ल से हट के बात है जो उसने कही है। और हम यहाँ पर दोबारा उसकी मजम्मत करते हैं। हम सारे के सारे जितने इंसानियत से ताल्लुक़ रखते हैं वो सब इसकी मजम्मत करेंगे और कहेंगे कि वसीम तुमने गलत किया। और हुकूमत से ये हम सब का मुतालबा है कि इसको जल्द अज जल्द अरेस्ट किया जाए और बग़ैर ज़मानत के इसको गिरफ़्तार किया जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मैं अंजुमन हुसैनिया और मस्जिद जाफरी और मुहर्रम कमेटी की जानिब से और तमाम शियान की जानिब से इसकी मजम्मत करता हूँ। ये वसीम रिजवी नहीं है बल्कि वसीम रुश्दी है। ये सलमान रुश्दी का भाई है, बल्कि उसका बड़ा भाई है। सलमान रुश्दी ने भी इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके लिए आगा खुमैनी का फतवा भी आया था कि ये वाजिबुल कत्ल है, इसको कत्ल किया जाए।
इसी तरीके से जो वसीम रिजवी ने किया वसीम रुश्दी ने जो किया है वो अलल ऐलान हम लोग इसकी मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द इसको सज़ाए मौत दी जाए। बिल्कुल, इसलिए कि ये मुर्तद हो चुका है। जिसने कुरान के किसी एक हर्फ का भी इनकार किया वो खारिज अज इस्लाम है और मुर्तद की सज़ा है कत्ल। ये वाजिबुल कत्ल है। इसको जो है जल्द अज जल्द इसको अरेस्ट किया जाए। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, तमाम अपनी बरादरी की जानिब से और तमाम अपने बरादरान इस्लामी से गुजारिश करते हैं कि इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है और हम लोग सब इकट्ठा मुत्तहिद होकर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। बिल्कुल सर, ये जो वसीम रिजवी तो इस वक्त हमारे दोस्त ने कहा कि वसीम रुश्दी, ये बिल्कुल सही कहा। वो उसका बाप है, रुश्दी का बाप है। ये आज का माहौल इस तरह से फैला कि बनाया है कि आलम इस्लाम में दरार पैदा करने के लिए, शिया सुन्नी में दरार पैदा करने के लिए एक साजिश की गई है। ऐसे में हमको इत्तेहाद की ज़रूरत है, यानी दोनों भाइयों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। इसलिए हम तमाम शहरान मैसूर और हमारे अहले शियत के और अंजुमन हुसैनिया की जानिब से उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और ऐसे अल्फाजों से मज़म्मत करते हैं जिसके अल्फाज की कोई भरपाई नहीं। और उस पर हम लानत भी भेजते हैं और इसके खाना पे भी लानत भेजते हैं और इसकी और जो भी इसकी हिमायत करता है उस पर भी हम लानत भेजते हैं और वो वलीदुज़्ज़िना की औलाद है। वो लानत 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 बेशुमार इस रिजवी पे लानत है, वसीम पे लानत, वसीम रुश्दी पे लानत, ये वक्त यजीद है, इस पे बेशुमार लानत है। इसे फांसी की सज़ा जल्द से जल्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देना चाहिए। ये मेरा एक अपील है, शियत से भी अपील है करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द सज़ाए मौत दी जाए।